ملتان میں فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین۔ اسموک کے بعد شہر اولیا کی فضا زہر آلود، ایئر کوالٹی انڈیکس 1186 پوائنٹ تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر ہے، جبکہ اسموک کے باعث حد نگاہ صفر رہ گئی۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا، موٹر وے M4 جزوی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ ملتان میں فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین شکل اختیار کر گئی ہے۔ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے سلمان ضمیر۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ اسموک کی وجہ سے لوگوں کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ جی بالکل، بات کریں گے ہم اسموک کے حوالے سے تو ملتان میں اس وقت اسموک جو ہے وہ سنگین حد تک جو ہے اس کے انڈیکس پہنچ چکے ہیں کہ ملتان کا آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان کا آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 1186 پوائنٹس پر ریکارڈ ہوا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کا آلودہ ترین شہر جو ہے وہ ملتان کو قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ اس کی پیش نظر اگر ہم دیکھیں لاہور کو، جہاں پر انڈسٹریز بھی ہیں، وہ جو ہے وہ 732 پوائنٹس کے ساتھ اس وقت دوسرے نمبر پر ہے۔ اور اس وقت ملتان کی فضا جو ہے وہ اتنی آلودہ ہو چکی ہے اور اتنی اسموگ یہاں پر موجود ہے کہ حد نگاہ جو ہے وہ دیہی علاقوں کے اور میدانی علاقوں کی اگر میں بات کروں، کیونکہ ملتان جو ہے وہ دیہی اور میدانی علاقوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے۔ جبکہ شہر کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو بلڈنگز بھی ہیں اور گاڑیوں کی آمد و رفت بھی دیکھنے میں آتی ہے، تو وہ حد نگاہ جو ہے وہ صرف 100 میٹر رہ جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملتان کے اندر اس وقت کوئی اتنا بڑا انڈسٹریل زون موجود نہیں ہے، مگر فضا آلودہ ہونے کا جو یہ مسئلہ ہے، یہ انتظامیہ اور حکومت کے لیے اس وقت چیلنج بنا ہوا کہ ملتان شہر میں اس وقت فضا جو ہے وہ اتنی آلودہ کیوں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کے درجہ حرارت کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں تو ملتان کا آج کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 32 ڈگری ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 91% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملتان موٹر وے کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ملتان موٹر وے کو 3 جگہیں لنک کرتی ہیں۔ شیرشاہ انٹرچینج ہے، اس کے بعد عبدالحکیم انٹرچینج ہے اور شامکوٹ انٹرچینج ہے۔ یہ تینوں انٹرچینج جو ہیں یہ بند کر دی گئی ہیں کیونکہ اس وقت موٹر وے پر جو ہے وہ حد نگاہ صفر ہو چکی ہے، جس کے باعث موٹر وے حکام نے موٹر وے کو مکمل طور پر اس وقت ملتان کی خاص طور پر میں بات کرتا چلوں تو وہ بند کر دی گئی ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ اس وقت میں موٹر وے پہ موجود ہوں، شیرشاہ انٹرچینج ہے اور یہاں پر گاڑیوں کی ایک طویل لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے موٹر وے کھلے اور ہم اپنے مختلف مقامات جہاں پر ڈیسٹینیشن ہے اس ڈیسٹینیشن تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اسموک کے باعث جو ہے وہ اس وقت انٹرچینج مکمل طور پر بند ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہے وہ لائن میں اس وقت یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور موٹر وے کا کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ جبکہ موٹر وے حکام سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو موٹر وے حکام کا یہی کہنا ہے کہ جب تک فضا کی جو حد نگاہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک ہم موٹر وے کو کھول نہیں سکتے، کیونکہ فاسٹ لین ہے اور زیرو جو ہے وہ ویزیبلٹی ہے، جس کے باعث گاڑیوں کو ہم انٹر ہونے نہیں دے سکتے۔ اس وقت جو موٹر وے حکام نے مجھے بتایا وہ یہی بتایا کہ موٹر وے جو ہے وہ تقریباً 12 بجے تک کھول دی جائے گی اگر موسم صاف ہو گیا تو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو محکمہ صحت کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت نے یہ بھی وارننگز جاری کی ہیں کہ جتنے بھی ملتان کے شہری ہیں وہ باہر نکلنے سے گریز کریں اور اگر نکلنا ضروری بھی ہو تو ماسک کا استعمال کریں، آنکھوں پر اینک کا استعمال کریں تاکہ اسموگ کے اثرات سے بچا جا سکے، اور اگر نکلنا بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے تو ساتھ اپنے پانی اور آئی ڈراپس ضرور ساتھ لے کر چلیں تاکہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اگر کھانا پینا کچھ کرنا ہو تو معتدل غذا جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ بدلتا موسم ہے اور سردی گرمی لگنے سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ بھی پھیل سکتی ہیں، تو اس کی پیش نظر جو ہے معتدل غذا جو ہے وہ استعمال کرے تاکہ نزلہ، کھانسی، بخار اور زکام سے بچا جا سکے۔ جی سلمان ضمیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بہاولپور کی بات کریں گے۔ بہاولپور میں فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین ہے، شہر اور گرد و نواح شدید اسموگ کی لپیٹ میں، ایئر کوالٹی انڈیکس 261 پوائنٹ ریکارڈ، مختلف علاقوں میں حد نگاہ 0 سے 2 میٹر تک محدود،
स्मोक के बायस मज़ाफाती इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मजीद जानेंगे ताहिर जोइया से। जी ताहिर, बहावलपुर की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? और देखिए, सबसे पहले मैं इसको स्मोक नहीं कहूँगा, मैं इसको धुआं या स्मोक कहूँगा, ताकि आम लोगों को भी समझ आए कि बहावलपुर में ये प्री मेच्योर धुंध नहीं है। और बाज़ शहरी जो है वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि बहावलपुर में चूंकि सर्दी आ गई है तो सर्दी की वजह से अब बहावलपुर में धुंध का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये धुंध बिल्कुल नहीं है, स्मोक भी नहीं मैं इसको कहूँगा, ये स्मोक है, धुआं है और धुएं के साथ कुछ नमी मिक्स है, जिसकी वजह से बहावलपुर और मुज़फ़्फ़राती इलाके जो हैं वो सुबह से इसकी लपेट में। और हमें ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये आज भी इसी तरह से सूरत हाल बरकरार रहेगी। कल भी सारा दिन सूरज नहीं था निकला और आज तो ज़्यादा जो है स्मोक और स्मोक की जो शिद्दत है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त भी बहावलपुर शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ 50 मीटर तक यहाँ पे है और बाज़ इलाकों में सिर्फ सिफर होकर रह गई है। शहरी जो हैं उन्होंने फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ साथ अगर हम ओवरऑल बहावलपुर शहर की बात करते चलें तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, मामूल से रश कम है और शहरी जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो घरों में रहें, लेकिन जिन शहरियों को जरूरी काम से बाहर निकलना है वो बाहर निकले हुए हैं। और अगर हम वैसे ओवरऑल यहाँ इस ओपन एरिया में सांस की बात करते चलें तो मास्क के साथ भी सांस मुश्किल आ रहा है और मास्क उतारें तो उसके साथ तो और मुश्किल सांस आ रही है। और अब ये सूरत हाल सिर्फ आउटडोर तक महदूद नहीं है, अब इनडोर घरों के अंदर बड़े बड़े हॉल्स के अंदर भी ये सूरत हाल ऐसी है कि अब आपको सांस आना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया। तो सूरत हाल जो है वो मजीद संगीन हो गई है। बहावलपुर और गिरदोनवां के इलाके आज सुबह से शदीद स्मोक की लपेट में है और महकमे मौसम की तरफ से कोई ऐसी पेशीन गोई नहीं है कि बहावलपुर में आया कि बारिश होनी है या तेज़ हवाएं चलनी है जिसकी वजह से शहरियों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। तो शहरियों को मजीद इस तरह का मौसम जो है स्मोक ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आज सुबह से जैसे हम देख रहे हैं हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और जिस तरह से अस्पतालों में सूरत हाल है, शहरी इन्फेक्शन का शिकार होकर रिपोर्ट होते नज़र आ रहे हैं और बाज़ शहरी ऐसे भी हैं जिनको सिविरिटी जो है उनके इन्फेक्शन की काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है। तो ये बहावलपुर की मौजूदा सूरत हाल है। और साथ साथ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते चलें तो 271 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। बहावलपुर की फ़िज़ा इस वक्त 31 दर्जे आलमी मेयार से मुज़र सेहत करार दी गई है सांस लेने के लिए। तो ऐसे लोग जिनको कोई दमा की शिकायत है, जिनको सांस की बीमारियों में मुब्तला है या कोई हार्ट की बीमारियों में मुब्तला है, उनके लिए तो बिल्कुल ये कहा गया है कि वो घरों में महदूद रहें। और तिब्बी मारीन का ये कहना है कि अब चूँकि हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि बाहर निकलना मकसूद नहीं है, आप बाहर बिल्कुल ना निकलें, घरों में ही रहें और प्रेफर यही करें कि आप अगर घर में रह के कोई काम सर अंजाम दे सकते हैं तो घरों में रहें, बाहर ना निकलें। लेकिन जो लोग ज़रूरी काम से बाहर निकले हुए उनके लिए यही तनबीह की गई है कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वो स्कार्फ का इस्तेमाल करें और जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो ज़्यादा इस धुंध का और इस स्मोक का शिकार होते नजर आए तो उनके लिए ये कहा गया है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। जो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ताहिर जोइया बहावलपुर से हमें अपडेट कर रहे थे, सलमान जमीर भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमें स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बता रहे हैं आपको फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन है, शहर और गिरदोनवां शदीद स्मोक की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह सिफर से 200 मीटर तक महदूद। रहीम यार खान भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। स्मोक के बायस शहर में हद निगाह कम, एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक के बायस शहरियों में बीमारियां फैलने लगी है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा स्मोक के हवाले से क्या सूरत है रहीम यार खान में? बिल्कुल, रहीम यार खान में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो संगीन सूरत हाल पर है इस वक्त के। रहीम यार खान में हर चीज़ जो है वो इस वक्त लगता है कि स्मोक ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है कि हद निगाह बिल्कुल ज़ीरो है। और शहर में सुबह सवेरे जब शहरियों की आंख खुली है तो उन्होंने ये देखा कि रहीम यार खान में हर तरफ जो है वो स्मोक का राज है और स्मोक के राज की वजह से जो है वो शहरियों की सेहत पे भी जो है वो बुरे असरात जो है वो मनफी असरात मुरतब होना जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं माहिरीन सेहत के मुताबिक। रहीम यार खान में अगर दर्जा देखा जाए तो रहीम यार खान में आज शहर और गिरदोनवां में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा था वो 36 सेंटीग्रेड, जबकि जो कम से कम दर्जा था वो 19 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में रहीम यार खान की जो फ़ज़ा की जो क्वालिटी है या एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जनूबी पंजाब के फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में जो है वो सफ़े अव्वल पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। मुल्तान इस वक्त दुनिया के पहले नंबर पर है फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में, तो रहीम यार खान भी जो है उसके बाद उसका जो रहीम यार खान का नंबर आता है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों में जो है
है वो सांस, फेफड़े, दमा, चेस्ट इन्फेक्शन और दीगर बीमारियां फैलने के जो खदशात हैं वो बढ़ने लगे। और माहिरीन सेहत की जानिब से भी शहरियों को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि जिस तरह के मौसम है, शहरी कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ये सफ़र ना करें। अगर निकलना भी हो तो कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ जो है वो कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर का जो दामन है वो हाथ से ना जाने दें, ताकि इस तरह के मौसम और स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी से होने वाली बीमारियों से शहरी जो है वो महफूज रह सकें। उसके साथ साथ क्योंकि हद निगाह की अगर बात की जाए तो रहीम यार खान में हद निगाह आज कहीं पे ज़ीरो है तो कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा शहर में जो हद निगाह है वो सिर्फ 200 मीटर तक ही महदूद है। हद निगाह ज़ीरो से 200 मीटर बहुत ही कम होने की वजह से अगर मोटरवे M5 देखा जाए तो मोटरवे M5 पर आज गाड़ियों की जो रवानी है वो बहुत ही कम है, और यही सूरत हाल शहर में भी है। और इसके साथ साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस की जानिब से भी जो ड्राइवर हजरात हैं उनको जो है यही अवेयरनेस दी जा रही है, क्योंकि इस तरह की स्मोग है और हद निगाह कम होने की वजह से जो हादसात हैं उनकी शरह में जो है वो इजाफे के इम्कानात हैं। उनकी जानिब से शहर ड्राइवर्स को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि एक तो रफ्तार कम करें, उसके साथ साथ फॉग लाइट्स का जो है लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि इस तरह के मौसम में अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करें तो हादसात जो होते हैं उसकी शरह में जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो कमी लाई जा सकती है। उसके साथ साथ दिल्ली इंतज़ामिया और इसके साथ साथ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और महकमा ज़राअत की जानिब से भी शहरियों को जो है वो अवेयरनेस देने का एक सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ अगर दिन के दौराने को अगर देखा जाए तो रहीम यार खान में जो दिन गुजरते जा रहे हैं दिन के दौराने में भी कमी आने का सिलसिला जो वो जारी है। हद निगाह जो वो इस वक्त आपके सामने है कि हर चीज़ जो है वो स्मोक ने अपनी लपेट में ले ली है, लेकिन रहीम यार खान में आज सूरज जो है वो 6:32 पर तलू, जबकि 5:45 पर सूरज जो है वो गरूब होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिरदुना में आइंदा 24 घंटों में भी इसी तरह से जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का राज जो है वो जारी रहेगा। स्मोक का राज बरकरार रहेगा। हमारे साथ आमिर भट्टी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी। अब रुख करेंगे डारावाला का। डारावाला में स्मोक के साथ धुंध का भी राज है, धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो गई। मजीद जाने के अकरम से। जी अकरम, आगाह करिएगा। डारावाला शहर और गिरदोनवा शदीद स्मोग और धुंध की लपेट में इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है। इस हवाले से वो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं और आम आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि धुंध का जो है स्मोक की जो एक बहुत बड़ी ये किस्म की इस पर बीमारी है, और ये आपको ये मैं बता रहा हूँ डॉक्टर रोजाना की बुनियादों पर लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि ये आप मास्क इस्तेमाल करें, और उसके अलावा आंखों को बचाएं। ये आंखों की इन्फेक्शन हो सकती है, और जो है आप सांस के जरिए आपको बीमारियां बहुत सारी जो है आपके गिर्द आपको घेरा तंग कर सकती हैं, इसलिए इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है स्मोक के हवाले से। और सफर के दौरान एहतियात करें, और जो लाइट है स्मोक के हवाले से जो धुंध के मौके पर काम करती है वो इस्तेमाल करें, और ये अवाम खुसूसी तौर पे अपने बच्चों को बचाएं। और स्कूलों में भी हुकूमत ने हिदायत की है इस हवाले से कि वो छुट्टियां कर रहे हैं। अभी आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो मास्क है उसको अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं जब तक ये स्मोग और धुंध का राज है। और दूसरे नंबर पर यह है कि जिला बहावलनगर में अभी तक स्मोक की वजह से जो स्कूल हैं वो खुले हुए हैं, इस पर भी गवर्नमेंट को फौरी एक्शन लेना चाहिए। जी, डारावाला में स्मोक के हवाले से बता रहे थे। उच्च शरीफ की बात करेंगे तो उच्च शरीफ शदीद स्मोक की लपेट में है। स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम। शहरी स्मोक के नुकसानात से बेखबर हैं, बगैर मास्क पहने अपने कामों में मसरूफ है। मजीद जानेंगे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल, शरीफ मज़ाफ़ात के मौसम के हवाले से बात करें तो शरीफ मज़ाफ़ात में आज का शदीद स्मोक का राज है, और शरीफ के तमाम तर मज़ाफ़ाती इलाके इस वक्त स्मोक की लपेट में हैं, जिन पर खैरपुडा है, हतेजी है, चन्नीगोट है, इसके साथ साथ धूरकोट है, चंद बिछारत है, बेट बख्तियारी है, कच्ची लाल है, कोट खलीफा है। तमाम तर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त स्मोक का राज है, और हद निगाह भी काफ़ी हद तक मुतासर है। जिसके साथ साथ मोटरवे हो, मोटरवे M5 हो या एक्सप्रे वे हो, वहाँ पर भी ट्रैफिक रवानी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है इन स्मोक से, इस खतरनाक स्मोक के जो खतरात हैं उससे बेखबर होकर अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। ना कोई मास्क लगा कर घूम रहा है, ना ही कोई आँखों पर चश्मा लगा कर घूम रहा है। अपने अपने कामों में ऐसे मसरूफ़ हैं कि जैसे कुछ हो भी नहीं रहा। ये इंतहाई ख़तरनाक जो है स्मोक है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आँखों की और गले की और दीगर जो हैं वबाई अमराज फैलने का शदीद ख़तरा है। यही महकमा माहौलियात की वजह की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ भी यही हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अब जब भी निकलें अपनी आँखों पर चश्मा लगाएं और चेहरे पर मास्क लगा कर निकलें, ताकि इस स्मोक के असरात से बचा जा सके।
आगे बढ़ते हुए दुनियापुर की बात करेंगे। दुनियापुर में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। नेशनल हाईवे रोड पर ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार है। हमें अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। जी याकूब। बिल्कुल, मैं इस वक्त नेशनल हाईवे दुनियापुर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्मोक की वजह से जो है आप देख सकते हैं कि हद निगाह जो है इंतहाई कम होकर रह गई है। स्मोक के जो असरात हैं पंजाब के दूसरे शहरों की तरह इंतहाई शदीद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि नज़र जो है बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई। और खास तौर पर मोटरवे जो है बंद कर दी गई है। मोटरवे की बंदिश की वजह से जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे रोड पर ट्रैफिक का फ्लो भी बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर जिस जिस शहर से ट्रैफिक गुजरती आ रही है वहाँ पर मकामी इंतजामिया की जानब से कोई भी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार यहाँ पर तैनात नहीं कहे गए, जिसकी वजह से कि यहाँ पर जो हादसात की सूरत जो है वो काफी हद तक ज्यादा देखने में आ रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि दुनियापुर के अंदर यहाँ पर ये जो है एक जो लोडर ट्रॉलर है ये जो है स्मोक की वजह से और नजर ना आने की वजह से डिवाइडर पर चढ़ गया। ये तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे बैग में ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो कतारों की सूरत में जानी है। लेकिन यहाँ पर बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि जो काम ट्रैफिक पुलिस की जानब से करना चाहिए था वो बिल्कुल ही यहाँ पर देखने में नहीं आ रहा। यही कहना है आला हकाम से कि फौरी तौर पर जो कि है ट्रैफिक पुलिस को हर जगह जहां से ये नेशनल हाईवे गुजरती है, खास तौर पर शहरों में और जो शहरों के दरमियान जो है कट दिए गए हैं वहां पर तैनात की जाए, ताकि जो है यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बाहिफाजत तरीके से गुजर सके। जी अब बात करेंगे खैरपुटामे वाली की। खैरपुटामे वाली में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। मजीद जानेंगे मुश्ताक जोइया से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब भर की तरह खैरपुटामे वाली शहर और गिरदोनवा में भी जो स्मोक का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। शहर और गिरदोनवा को स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिए। आज जो है स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हूँ। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं तमाम धुआं ही धुआं छाया हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस का यही मशवरा है कि शहरी जो हैं वो घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। अगर मजबूरी है तो मोटरसाइकिल हजरात जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, ड्राइवर हजरात फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अपनी साइड पर ही गाड़ी चलाएं, रॉन्ग साइड पर ना जाएं। दूसरी जानब गाड़ी भी जो है वो रोड पर खड़ी ना की जाए ताकि किसी भी हादसा का शिकार ना हो सके। तो इसी तरह तिबी माहिरीन का भी यही मशवरा है कि शहरी घरों में ही रहें। अगर मजबूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, अगर मास्क नहीं है तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि मास्क का ही इस्तेमाल करें और घरों में ही रहें। तो दूसरी जानब ये भी मशवरा दिया है डॉक्टर तिबी माहिरीन ने कि शहरी अगर गले की में खराश, नज़ला, ज़ुकाम और किसी बीमारी में की शिकायत हो तो फौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जाए और स्मोक से बचा जाए।